Morning students, ninth class. Today I am going to explain about the next concentration terms of solid in liquid solution. How can we calculate the concentration of solid in liquid? Yesterday we have discussed about mass by mass percentage or W by W. It can be also taken as weight by weight. Next concentration term of solid in liquid is mass by volume percentage. Mass by volume percentage. What does it mean? It means that in this case the mass of solute, it is defined as mass of solute in gram that is dissolved in this volume of the solution, that is present in 100 ml of the solution. This is called as mass by volume percentage. This mass means that our solute is present in solid state and this volume means the solvent is present here in liquid state. That's why we have taken mass by volume percentage. How we can calculate this mass by volume percentage in a solution? By using the formula mass of solute divided by volume of solution. Mass of solute is divided by volume of solution multiplied by 100. In this way we can calculate the mass by volume percentage of any kind of solution. Clear? Now concentration of dilute solution. If we have given very dilute solution, how dilute solutions are prepared? Dilute solutions are prepared by adding water as a solvent in the given स्पेसिफिक सोल्यूट. जो भी हमारे पास सोल्यूट होगा उसको हम डाइल्यूट करेंगे बाय एडिंग वाटर, ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैव very less concentration. That is, the amount present in such type of solution of respective solute will be very less as compared to the complete solution. Now how can we calculate concentration of very dilute solution? It is calculated by using the next concentration term called as parts per million. This type of concentration of very dilute solution can be obtained by concentration terms called as parts per million, or simply it is called as ppm. What does this ppm stands for and how can we explain it? It is defined as number of parts by mass or volume. In this case we can use mass as well as volume term for the given solute. Number of parts by mass or volume of the solute present per million by mass और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. गिवन सॉल्यूशन के अंदर भी मास या वॉल्यूम कंसीडर करेंगे. अगर हमारा सॉल्यूट जो है फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है तो हम यहाँ पर दोनों केस में टर्म कंसंट्रेशन टर्म मास यूज़ करेंगे. अगर वो लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, इन दैट केस वी विल यूज़ द टर्म वॉल्यूम. सपोज इन दिस केस वी हैव टेकन the amount of harmful poisonous gases present in atmosphere such as nitric oxide NO or nitrogen dioxide NO2 or sulfur dioxide SO2. These are the pollutants present in the atmosphere which causes pollution. So these gases are harmful to environment as well as human being. So amount of these pollutant gases or these harmful gases in the air is प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी. अब जो इसकी क्वान्टिटी प्रेजेंट हो एटमोसफेयर में, दैट क्वान्टिटी इज़ वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोटिस दैट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ 10 पार्ट्स बाय मास. जो हमारे पास पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी अमाउंट कितनी है, 10 पार्ट्स बाय मास. मीन्स सपोज इसकी वैल्यू है 10 ppm. गिवन वॉल्यूम के गिवन सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सोल्यूट है उसके अमाउंट कितने यहाँ पर 10 ppm. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 10 पार्ट्स बाय मास और दी वॉल्यूम. अब SO2 गैस है तो हम यहाँ पर कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करेंगे, वॉल्यूम. इट मीन्स 10 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, इतनी एयर के अंदर अमाउंट कितनी है उसकी, 10 पार्ट्स है. दैट्स वाई वी यूज़ दिस कंसंट्रेशन टर्म कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज़ द calculation or finding out the concentration of
liquid in liquid solution. How can we calculate the concentration of liquid in liquid solution? And these methods are for solid in liquid solution. Now in this case both solute and solvent are present in liquid state. In this case we will use liquid solute as well as liquid solvent. So the concentration term can be defined as volume of solute in milliliter that must be dissolved in 100 ml of the solution. जो हमारे अमाउंट होगी सॉल्वेंट की जिसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं दैट अमाउंट इज़ फिक्स्ड. सपोज हमने कितना लिया ये 100 ml. तो 100 ml सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम कितना ml सोल्यूट यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज volume by volume percentage. Therefore this concentration term is called as volume by volume percentage. How can we calculate? It can be calculated as volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. By using this formula we can calculate this concentration term volume by volume. One more point in this concentration term is that this concentration term is mainly used by the chemist. This concentration term is mainly used by the chemist for preparation of different types of medicines, syrups, etc. जो भी हमारे पास different medicines होती हैं या फिर जो syrups हम यूज़ करते हैं कफ सिरप टॉनिक्स वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उस केस में जो भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ करेंगे फिज़िकल स्टेट वहाँ पर हम क्या लेंगे लिक्विड. कुछ केसेस में हम उसमें W/V टर्म भी यूज़ कर सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम. अब हम यहाँ पर मास को रिप्लेस करके वेट बाय वेट भी यूज़ कर सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म. फॉर एग्जांपल antacid है एक विच इज़ नेम्ड एज जेलुसिल. Antacid named as Gelusil. Now this Gelusil is formed by mixing of 5% of magnesium hydroxide and 5% of aluminium hydroxide plus other medicines. ठीक है इसके अंदर 5% प्रेजेंट होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दैट इज़ नेम्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5% solution of aluminium hydroxide along with some stable solvent. So these are the concentration term used to prepare this medicine named as Gelusil. Clear? Now on the basis of concentration we have different types of solution. On the basis of the concentration of solute we have different types of solution and these solutions are specially categorized as unsaturated solution, second is saturated solution and third is called as super saturated solution. Now we have three different categories of solutions on the basis of concentration of solute present in them. First is called as unsaturated, second is called as saturated and third one is called as super saturated. What is saturated solution? A saturated solution is that in which no more solute, the solution in which no more solute can be dissolved. जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की एक फ़िक्स अमाउंट डिज़ोल्व कर सकते हैं उसके बाद उसके अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा. जितना सोल्यूट एक्स्ट्रा डालेंगे वो वहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होगा वो कंटेनर के बॉटम पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इज़ टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर? नाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन is that in which more and more solute can be dissolved जिसके अंदर हम ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं that type of solution is called as unsaturated solution. Third is a super saturated. This is a solution in which solute more than required amount. The solution in which solute more than the required amount कैन बी डिज़ोल्व जिसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वी कैन एक्सप्लेन ऑल दिस टर्म्स विद द हेल्प ऑफ सिंगल एग्जांपल. सपोज वी हैव टेकन अ बीकर containing approximately 100 ml water. Clear? A beaker is taken filled with 100 ml water. Now we have to dissolve sodium chloride in this water. Clear? We want to dissolve sodium chloride in this beaker, and it was observed that 36
experimentally it was observed or it was obtained that only 36 ग्राम ऑफ NaCl कैन बी डिजोल्ड इन 100 ml वाटर। अगर हमारे पास 100 ml वाटर है तो उसके अंदर हमारे पास NaCl की अमाउंट फिक्स है। कितने अमाउंट फिक्स है? 36। तो 36 के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर डिजोल्व नहीं कर पाएगा ये सॉल्वेंट। इससे कम अमाउंट है तो उसको रेगुलरली क्या करता रहेगा, ये डिजोल्व करता रहेगा, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। सपोज़ हमने इस 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम NaCl ऐड किया है, ठीक है, डिज़ोल्व किया, सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया। 10 ग्राम और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 10 ग्राम डिज़ोल्व हो गया। तो जितना हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं 10 + 10 20 ग्राम, इट मीन्स जो भी हमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया है वो सॉल्यूट क्या हो चुका है? डिज़ोल्व। इट मीन्स अभी भी सॉल्यूशन कैसा है? स्टिल दिस सॉल्यूशन इज़ unsaturated because it have the capacity to dissolve more amount of solute. Now slowly and slowly we are going to add 10 ग्राम ऑफ NaCl in 3 slot। 3 बार करके हमने इसके अंदर NaCl को ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 10 ग्राम एक्स्ट्रा और भी। अब ये कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होगा, इसमें से कुछ अमाउंट जो डिज़ोल्व की है वो भी करके बॉटम पे आ जाएगी, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पर हमने 36 ग्राम ऐड कर दिया, 30 + 6, तो कंप्लीट 36 ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आपने इसके अंदर 1 ग्राम भी ऐड किया है तो ये 1 ग्राम सॉल्यूट बी करके बॉटम पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। 36 ग्राम ऑफ NaCl in this 100 ml वाटर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड। अब इसके अंदर और सॉल्यूट की डिसोल्यूशन नहीं होगी उस फिक्स टेम्परेचर पे। जिस टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया है उस टेम्परेचर पे फर्दर डिसोल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट केस है, अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सपोज़ हमने 10 ग्राम और ऐड कर दिया, 36 था + 10, हमारे पास कितना आ गया? 46। तो जितना एक्स्ट्रा ऐड किया है वो एक्स्ट्रा साल्ट इस बीकर के बॉटम पे क्या हो जाएगा? दोबारा से डिपॉजिट। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड, यानी कि इसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसका नाम होगा सुपर सैचुरेटेड। जिसके अंदर प्रॉपर गिवन अमाउंट के बराबर सॉल्यूट ऐड करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। और जिसके अंदर कम सॉल्यूट डाल रखा है और एक्स्ट्रा वो और भी ले सकता है, दैट इज कॉल्ड एज unsaturated solution. In this way we can categorize these type of solution. Next is the solubility. How the solubility of these solutions affected? Now the solubility of these solutions is affected by two factors named as temperature and pressure. Increase or decrease in temperature or increase or decrease in pressure also affect the solubility. So first of all we will discuss about the solubility of solid in liquid. इस केस में हमारा जो सॉलिड है दैट इज़ द सोल्यूट एंड दिस लिक्विड विल एक्ट एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फैक्टर अफेक्टेड होगा दैट इज़ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, सपोज़ हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है 36 ग्राम ऑफ NaCl वाज डिज़ोल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। अब इस सॉल्यूशन को हीट करना है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट द solubility of this solution now increases because हीटिंग से क्या होगा? जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे और एक्सपेंशन शो करेंगे। हीटिंग से जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस वो क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं। तो यहाँ पर हीटिंग से क्या होगा? पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, वेकेंट स्पेस क्रिएट होगा, अंडरगो ऑसिलेशन। जब पार्टिकल्स मूवमेंट शो करेंगे तो बीच में यहाँ पर वेकेंट स्पेस क्रिएट होगा। उस वेकेंट स्पेस के अंदर फ्यू ग्राम ऑफ द साल्ट कैन बी डिज़ोल्व, उसके अंदर एक्स्ट्रा अब साल्ट को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका रिवर्स कर देते हैं, अब डिज़ोल्व कर चुके हैं एक्स्ट्रा साल्ट को भी 36, सपोज इसके अंदर हमने 5 ग्राम एक्स्ट्रा डिज़ोल्व किया। अब अगर इसको हम कूल करते हैं, इफ़ वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर इज़ डिक्रीजेज, नाउ temperature decreases means we are now cooling the solution. On cooling it was observed that the solid solute separate out, solid solute separate out। जितना भी एक्स्ट्रा हमने इसमें डिज़ोल्व किया था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेपरेट। इट मीन्स इन दिस केस दिस solubility नाउ डिक्रीजेज। अब यहाँ पर जो solubility है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। नेक्स्ट, प्रेशर इज़ नॉट अफेक्टेड or the effect of pressure is not observed in case of solubility of solid in liquid because solids are totally incompressible and liquids are slightly compressible with effect of pressure. Therefore pressure doesn't affect the solubility of solid in liquid. Pressure will affect the solubility in case of gases.
Clear? Pressure will affect the solubility in case of gaseous solution. Suppose we have taken solution of gas in liquid. Gas is a solute and this liquid is the solvent. If we increases the temperature, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा? इन दिस केस द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेज. गैस की सोल्यूबिलिटी वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी. अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़. देयर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कम है तो गैस क्या होगी? मोर सोल्यूबल इन द लिक्विड. इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई इन दैट केस गैस इज़ लेस सोल्यूबल इन द लिक्विड. क्योंकि हीटिंग से क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स एनर्जी गेन करके गिवन वॉल्यूम को लीव करके स्पेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे तो उसकी अमाउंट वहाँ पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज़. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज़ द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड विद प्रेशर. ये था हम टेम्परेचर का अफेक्ट. अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी. नाउ विद इंक्रीज़ इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़. ठीक है? इफ़ प्रेशर इंक्रीजेज इन दैट केस सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन पर्टिकुलर लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेज इन दैट केस सोल्यूबिलिटी आल्सो डिक्रीजेज. देयरफॉर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी. Therefore we can say that pressure is now directly proportional to solubility. जितना प्रेशर हाई होगा उतनी ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व. बिकॉज गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. अगर कॉम्प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा गिवन सॉल्यूशन के अंदर या गिवन सॉल्वेंट के अंदर, उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा. अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करते तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़. एक कॉमन सा एग्जांपल है इसके अंदर. इन कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसके अंदर जो स्टॉपर या कैप लगी होती है, दिस कैप इज़ attached to this bottle when pressure is high and temperature is low. temperature low means कूलिंग कर दिया है इसका. जैसे ही हम इस कैप को ओपन करते हैं इट मीन्स अब प्रेशर क्या हो चुका है? यहाँ पर कम हो गया है क्योंकि कैप को ओपन करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो चुका है. इफ़ प्रेशर इज़ लो इन दैट केस अमाउंट ऑफ गैस सोल्यूबल वो क्या हो जाएगी? यहाँ से गैस जो है वो बाहर इवोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी. तो प्रेशर डिक्रीज़ कर चुके हैं तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़. हैंस वी कैन एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी बाय इंक्लूडिंग टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन concentration and solubility. 5 questions are given in solved problems. Try to solve these questions.